اسلام آباد تک پہنچی. ان معاشی حالات میں آپ مجھے بتائیں کہ کون 10 دن اپنا گھر، اپنا کام، اپنا مزدوری، اپنا محنت چھوڑ سکتا ہے اور اس قسم کے ظالم رژیم کے خلاف احتجاج کر سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اس رژیم کو ہلا کے رکھ دیا ہے. عمران کے گالی کے علاوہ، جھوٹے الزامات کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے. کہتا کیا ہے؟ وہی کرپشن کا رٹ جو غلط بار بار ثابت ہوتا ہے. اس سے پہلے بہت لوگ ہیں، اس سے پہلے بہت سے لوگ آئے ہیں. یہی سکرپٹ سن سن کے پاکستان کے عوام تھک چکے ہیں. صدر زرداری کے بارے میں 30 سال سے سن رہے ہیں کرپشن کرپشن کرپشن. ان کو معلوم ہے کہ ثابت نہیں ہوا. ان کو معلوم ہے کہ یہی لوگ کہتے رہے. پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے رہے. صدر زرداری ایک دن کے لیے نہیں جھکا. اور چیر ان کا یہی ہے کہ صدر زرداری کو یا پیپلز پارٹی کو آپ توڑ نہیں سکتے. ارادہ تو یہی تھا کہ صدر زرداری کو جیل میں رکھا جائے گا، فریال تالپور صاحبہ کو جیل میں رکھا جائے گا، ایسے حالات میں رکھے جائیں گے جہاں ادویات سے بھی محروم رکھا جائے، اور یہ برداشت نہیں کر سکیں گے. ہم سب خاموش ہو جائیں گے. صدر زرداری علاج کے لیے باہر چلا جائے گا اور آپ کا اس نالائق، ناکام ترین، ناجائز حکومت کو مسلط کرنے کا جو راج ہے وہ جاری رہے گا. اگر نہ ہم خاموش ہوئے، نہ صدر زرداری ٹوٹے، اور نہ وہ کہیں باہر جا رہا ہے، پہلے ہم آپ کا بندوبست کرتے ہیں بھائی. پہلے ہم جمہوری ہتھیار استعمال کر کے جمہوریت کا انتقام لیتے ہوئے آپ کو گھر بھیجتے ہیں. یہ سارے الزامات جو آپ نے صدر زرداری پہ لگائے ہیں، میں آج بھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ثابت کرو عدالت میں. 30 سال سے ہم یہ جھوٹے کہانیاں سن رہے ہیں، پروپیگنڈا سن رہے ہیں، مگر آپ اس لیے ثابت نہیں کر سکے کہ ان میں سچ نہیں ہے. افتخار چودھری جب اس ملک کا چیف جسٹس تھا، وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب تھا، یہ سارے کے سارے کیسز سوئس کے ٹیکنا کے لے کے پتہ نہیں کہاں کہاں تک، سارے کے سارے کیسز ٹرائل ہوئے سپریم کورٹ کی عدالت تک. صدر زرداری اور سارے کے سارے کو اکیوز باعزت بری ہوئے. اس لیے آپ کو پھر سے جھوٹے کہانیاں، پروپیگنڈا پہ مبنی کہانیاں، جعلی جے آئی ٹی کی بنیادوں پہ بیانیاں کھڑا کرنا پڑا صدر زرداری کو جیل میں رکھنے کے لیے. مگر رکھ نہیں سکے کہ اس میں وہ طاقت نہیں تھا. جھوٹ پہ مبنی مقدمہ نہیں چل سکتا. جو آپ کے اوپر مقدمے ہیں وہ تو سچ ثابت ہے. فورن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے دکھا دیا ہے کہ اسرائیل اور بھارت سے تو نے فنڈنگ لیا. اکبر ایس بابر آپ کا بنیادی ارکان نے یہ دکھا دیا، ثابت کر دیا. اب وہ لوگ جو آپ پارٹی ڈونرز کلیم کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کینسر کی ہاسپٹل کے لیے پیسے دے رہے تھے. یہ کیسے پی ٹی آئی کا فنڈز بنے تھے؟ تو نے تیرے ماں کے نام کا ہاسپٹل پہ ڈاکہ مار کے
बीमार मरीजों के पैसा छीन के तेरा किचन चलाया, तेरा जमात चलाया, शर्म करो। दूसरे पे इल्जामात लगाते हो। तू तो सजा याफ्ता हो। अमेरिका का कोर्ट ने आप पे सजा सुनाया है, आपके खिलाफ फैसला सुनाया है, दूसरे पे इल्जामात लगाते हो। मेरा तो खातून अव्वल के लिए बहुत एहतराम है। आपने देखा होगा मैंने खातून अव्वल के खिलाफ कभी गलत ज़बान इस्तेमाल नहीं की। जो कहानियां ना सियासी मुखालफीन नहीं, जो हमें पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, मुख्तलिफ इदारे, खातून अव्वल के करप्शन के बारे में सुनाई देते हैं, उस पे आप क्या कहते हो? हमें तो बताया जाता है कि पंजाब का कोई पोस्टिंग नहीं हो सकता जब तक आप खातून अव्वल को पैसा नहीं पकड़वाते हो। हमें तो बताया गया है, हमारा जो इंफॉर्मेशन है, कि जो आपके चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार थे वो सारे पैसे हर तरफ फेंक रहे थे। उन्होंने सोचा कि शायद आपका एक एटीएम सही जगह था पैसा फेंकने के लिए, वजीर आला पंजाब बनने के लिए। दूसरा एटीएम सही था पैसा फेंकने के लिए, वजीर आला पंजाब बनने के लिए। मगर बुज़दार साहब सबसे होशियार था। उसने जहां पैसा दिया वो काम जादू की चला और अभी तक वो मुसीबत पंजाब का वजीर आला है। हमने कभी ये सियासत की ही नहीं। सदर जरदारी तो जो गाली उसको सुनाता है, जो झूठे इल्जाम उस पे लगाता है, वो कहता है कि ये मेरे ऊपर सवाब है, मैं जन्नत में जाऊंगा उनको झूठ बोलने दो। मैं सदर जरदारी नहीं हूं। आपकी बहन अलीमा खान के बारे में आप क्या समझते हो कि इसका मुल्क का एक फर्द, एक बच्चा इतना बेवकूफ है कि हम इस बात पे यकीन करें कि अलीमा बाजी ने अपने सिलाई मशीन्स बेच के इतना पैसा बनाए? झूठ बोलो तो इतना बोलो जो सच महसूस हो सकता है। मतलब हम इस बात का भी यकीन करें कि तू आज तक अपने क्रिकेट के खिलौने बेचते अपना किचन चला रहे हो। ओह, जो केसेस आप पे बनने वाले हैं इमरान, तुझे अंदाजा ही नहीं। तुझे दुआ करना चाहिए, खातून अव्वल से दुआ करवाए कि कोई और नहीं सदर जरदारी का हुकूमत आए। शहबाज शरीफ साहब से हम वक्त पे रिक्वेस्ट करेंगे कि अच्छा वजीर दाखिला रखे। मौलाना फजल रहमान साहब को आपने किस किस्म का गाली दी? तू होते कौन हो मौलाना साहब को गाली देना? तू है कौन? मौलाना साहब का और हमारा आज से नहीं, हम कायदे अवाम के वक्त से सियासी इख्तलाफात कर रहे हैं। अभी एक सेंटेंस निकाले जब मैंने कभी मौलाना फजल रहमान साहब को कोई ऐसे गाली दिया हो। आपको मालूम है कि मौलाना मौदूदी कौन है? आपको एहसास है कि जमात उलमा इस्लाम का तारीख क्या है? मुफ्ती महमूद, सॉरी मुझसे गलती हुआ, हमसे भी स्लिप ऑफ द टंग हो सकता है, ये सिर्फ वजीर आजम का हक नहीं है। आप इसको अंदाजा नहीं है कि मुफ्ती महमूद साहब कौन है। इसको इस मुल्क का तारीख का पता नहीं है, इस मुल्क का सकाफत का पता नहीं है, ना इस मुल्क का माजी का पता है और ना इस मुल्क का मुस्तकबिल का हिस्सा है।
ये है कौन? इकरामुल्लाह नियाजी का बेटा। ये हर किसी पे इसलिए चोर चोर का इल्ज़ाम लगाता है कि कायदे अवाम ने इकरामुल्लाह नियाजी को करप्शन की बुनियाद पे हटाया गया। उसको पता ही नहीं था कि ये है कौन, ना इसको वाकिफ ही नहीं था कायदे अवाम को कि ये है कौन। बस उसने 303 जो करप्ट तरीन ब्यूरोक्रेट्स थे उनको निकालने थे। कायदे अवाम ने ये काम किया और उस वक्त से लेके ये शख्स वो भूल नहीं सका और इस करप्शन पे रट के पीछे पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के अवाम के कान पक चुके हैं। वो आपके अब झूठे बातें वादे नहीं सुनना चाहते हैं। वो इस महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से निकलना चाहते हैं। आपसे निजात, तुझसे निजात चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला पूरा का पूरा ऑपोजिशन मिलके आपको अदम एतमाद से हुकूमत से निकालेंगे और आपका वो हिसाब का वक्त आ गया है। ये सारे बातें जो मैंने की, ये दूसरे ने अब आपके खिलाफ इन पे अमल करना है। आपने जो हमारे खिलाफ करना है ना, अभी करो, कल तुझे मौका नहीं मिलेगा। हम इस मुल्क के अवाम की खातिर, इस कौम की खातिर, जमहूरियत की बहाली की खातिर तेरे खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं। और मैंने अपना दी चौके तकरीर में भी कहा था, इससे मेरे कोई ज़ाती झगड़ा नहीं। झगड़ा यही कि जिस तरीके से आप 2018 में आए थे, वो हमारा इस मुल्क की जमहूरियत का बहाली को नुकसान पहुंचाया था। कल हम आपको निकालेंगे, साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे। आप साफ और शफाफ इलेक्शन से मुंतखब हो, मैं आपको सिलेक्टेड नहीं कहूंगा, लेकिन तब जब तक तू सिलेक्टेड हो हम आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये अवाम आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ना आप उस पोजीशन में हो कि आप इस मुल्क को इन मुआशी मुश्किलात से निकाल सकते हैं। एजाज भाई कर ले, आते हैं बारी बारी सबकी तरफ। क्या आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेंगे जो आपने तस्करा किया आशा बीबी पर हमले के हवाले से? और जिस चैनल का वो ड्रोन था, उस चैनल के मालिक को आपकी एक इत्तेहादी जमात आजकल की सीएमशिप के लिए सपोर्ट कर रही है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जहाँ तक लीगल एक्शन है उस पर बिल्कुल गौर किया जा रहा है। हम खुद लॉयर्स में राब्ते में हैं। हमने उस इंसिडेंट के बारे में भी इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल किया था, और जहाँ तक वज़ीर आज़म का कल का बयान है उस पर भी लीगल जो तरीक़ेकार है वो अपनाया जाएगा। जहाँ तक वो चैनल की बात है, उस चैनल ने हमें एक ख़त भी लिखा, बड़े माज़रतें भी की। जहाँ तक उनके ओनर हैं इस वक्त या पहले, वो उस पर भी हम अपना इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होने के बाद एक बेहतर पोजीशन में होगा उस पर कमेंट करने के लिए। अभी के लिए मैं आपने देखा होगा तकरीर करते हुए भी, उस वक्त पे भी, उन हालात में भी मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उस चैनल का नाम मैं ले लूँ। लेकिन जैसे हमारा ये लीगल प्रोसेस फॉलो अप होगा, मैं आपको इस पर अपडेट करूँगा। जहाँ तक आपका पहले सवाल था, मैं हमेशा अपना जो तरबियत है, मैं इस शख्स की वजह से उसको ख़राब नहीं करूँगा। हमें भी गाली देना आता है, मेरे ख़्याल में उससे ज़्यादा बेहतर मैं गाली दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं दूँगा। वो पता नहीं कौन है, मैं फिर भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा हूँ और मैं उसका लिहाज हमेशा करूँगा। साथ साथ सियासी हमले के लिए सियासी जवाब तो मैं दूँगा, ईंट का जवाब मैं ईंट में दूँगा। सती साहब, सती साहब, सती, वकार सती।
चेयरमैन साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जो नो कॉन्फिडेंस वोट की इतनी सारी मैनेजमेंट हो रही है, उस पे आपके जो इत्तेहादियों के साथ बातचीत हो रही है, क्या वो पॉजिटिवली आगे जा रही है, या जो आपने हुकूमती लोग तोड़ने की बात की है उन पे इत्तेफाक किया जा रहा है? आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैंने जो भी हुकूमत का रवैये हैं उसने हमें बहुत मदद किया है। हुकूमत वक्त ने जिस तरीके से 3 साल अपने इत्तेहादियों को, अपने मेंबर्स को चलाया है, वो शायद किसी आमिर ने भी ऐसे नहीं चलाए होंगे। तो हमारा बहुत ही अच्छा तादाद है मेंबर्स का। हम बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि अदम एतमाद कामयाब होंगे। मेरा अपना ख्वाहिश है, मेरा सोच है, मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर होगा अगर हम अपना एहतियाती उसको भी साथ जोड़ें। इसलिए हमारा काम सिर्फ इमरान को हटाने की नहीं है, हमारा काम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ही करने की। ज़रूर आप इमरान को नाराज़ मेंबर से हटा सकें, शायद आप इमरान को नाराज़ मेंबर से हटा सकते हैं, मगर अगर इत्तेहादियों भी आपके साथ होंगे तो इसका पैगाम बहुत ही अच्छा जाएगा और जो उसका ज़ोर होगा वो बहुत अच्छा होगा। और जब हम फ़ौरन वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के फ़ैसले लेते हैं, मैं सिर्फ नून लीग और नाराज़ मेंबर्स के साथ बैठ के और कुछ हमारे इत्तेहादियों के साथ बैठ के वो फ़ैसले नहीं लेना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि वो फ़ैसले उस मुल्क के लिए बेहतरीन फ़ैसले होंगे अगर हम सब मिल के ये फ़ैसले ले लें। तो इंशाअल्लाह ताला हम जो हमला करने जा रहे हैं वो तारीख़ी हमला भी होगा और हम इस हमले से जमहूरियत की फ़ायदा में कामयाबियाँ हासिल करेंगे। अलमदार, एक इधर एक इधर। अलमदार